Good morning, student. Today we will discuss how to calculate the gross profit, right? So topic is how to calculate the gross profit. How to calculate the gross profit. तो स्टूडेंट chapter 16 still continue, and for calculating the gross profit we should remember a formula to calculate the cost of goods sold. To calculate the cost of goods sold, and the formula is opening stock. Formula is opening stock, right, plus opening stock plus purchase minus purchase return minus purchase return plus direct expenses, right, minus closing stock. So this is the formula by which we can calculate the cost of goods sold. After calculating the cost of goods sold, we will calculate the gross profit, and the formula is sale minus cost of goods sold. Cost of goods sold. When cost of goods sold is minus from the sale, we will calculate the gross profit, right? And second, to calculate the gross profit, we will also prepare the trading account. Trading account. In trading account, there are 4 columns. First is particular debit amount, particular credit amount, right? So we will solve the illustration number 3. We will solve the illustration number 3. In illustration number 3, first of all, we will calculate the cost of goods sold. Cost of goods sold. First of all, we will solve the cost of goods sold, right? So the illustration number 3, we are given opening stock 15,000. Opening stock 15,000 and credit purchase 22,000, cash purchase 8,000 and purchase return 2,000, right? 22,000 credit purchase, 8,000 cash purchase minus 2,000 purchase return plus
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5000 minus closing stock 13,000, and finally we got 35,000. This is the cost of goods sold. We are given net sale, so we can easily calculate the gross profit, that is sale minus cost of goods sold. Cost of goods sold. Sale is given to us. Sale is 51,000. Sale is 51,000, and cost of goods sold. Cost of goods sold is 35,000. Right? So cash sale and carried sale given to us. Cash sale, we are given cash sale. Cash sale and credit sale. Cash sale, this is 12,000. Credit sale 40,000. Total 52,000. Less sales return. Less sales return, this is 1,000. This is 1,000. So finally we get net sale 51,000. 51,000 minus cost of goods sold 35,000, and we got the gross profit 16,000. So this is the first method. With the help we can calculate the gross profit. Secondly, if we want to prepare the trading account and calculate the gross profit, then we can. First of all, in trading account, first item is opening stock. First of all, we will put opening stock. Opening stock given to us 15,000, right? And then purchases. Second item is purchases. Purchases. Cash and credit. Cash purchase 8,000. Cash purchase 8,000 and credit purchase 22,000. 22,000. The total is 30,000. Less return. Less purchase return. Purchase return is 2,000. Purchase return is 2,000. Right? And net purchase is 28,000. Third item is direct expenses 5,000. Third is direct expenses 5,000. Now sale. Sale will be on carried side. Sale. Cash 12,000. Cash 12,000. Credit 40,000. Credit 40,000. Total is 52,000. Less return. Less return. This is 1,000. And net sale is 51,000. Last item, we will put the closing stock. Closing stock. And closing stock is 13,000. Lastly, we will make the total. If the total of the credit side is greater than debit side, then there is a profit. If the total of the debit side is greater than credit side, then there is a loss. So credit side total is 64,000. So this total we will write on both of sides, and debit side total will be minus from 64,000. Now the gross profit is 16,000. This is the gross profit. ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर परचेज लिखनी है, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये तीन आइटम ऑलवेज डेबिट साइड में ही आएंगी क्योंकि एक्सपेंसेस की साइड है डेबिट.
क्रेडिट साइड में आपको इनकम लिखनी है, इनकम आपकी है सेल। क्लोजिंग स्टॉक किस लिए लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसको अपने परचेज में से माइनस करना होता है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में लिखोगे, ऑटोमेटिकली ये परचेज में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, उसका टोटल ज़्यादा, ये टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा, ठीक है जी। और डेबिट साइड का टोटल आप क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 16,000। ठीक है राजे, उम्मीद है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना आ गया होगा और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है जी। अब राजे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राजे उसमें हम फिर दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। अब राजे मेरे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4। मेरे पास है इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 4 में हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 4 में हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का नाम रखेंगे हम पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम का नाम रखेंगे डेबिट अमाउंट, और इसके बाद तीसरे कॉलम का नाम फिर से पर्टिकुलर, और फोर्थ कॉलम का नाम रखेंगे हम क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। तो राजे एग्जाम्पल नंबर 4 में मेरे पास सबसे पहले दी हुई है परचेज़। ठीक है जी। तो आप परचेज़ को लिखेंगे सेकंड नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे आपके पास क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए आपने प्लेस छोड़ देनी है। सेकंड आइटम आपकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली परचेज़ है, और परचेज़ है हमारे पास 45,500 की। परचेज़ के पास मेरे पास है वेजेस। वेजेस हमारी थर्ड आइटम है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका हेडिंग है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आप लिख सकते हो वेजेस। वेजेस का अमाउंट मेरे पास जो बुक में दिया हुआ है वो है 5,000। वेजेस मैंने 5,000 डाल दी है। उसके बाद मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 25,000 का, वो हमने 25,000 का डेबिट साइड में पुट कर देना है। इसके बाद हमारे पास सेल है। सेल क्योंकि इनकम है और क्रेडिट साइड इनकम की होएगी, तो आपको सेल को क्रेडिट साइड में शो करना है। आपकी जो सेल है वो है 68,800 की। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, अगर कैरीज के साथ इनवर्ड लग जाए तो ये खर्चा परचेज़ के ऊपर माना जाता है। तो कैरीज इनवर्ड जो है हमारे पास 1500 का है, वो अपने डेबिट साइड में लिख दिया 1500। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फ्रेट एंड ड्यूटी है। ठीक है, ये भी जो खर्चा है हमारा परचेज़ के ऊपर ही है, फ्रेट एंड ड्यूटी। ठीक है जी। तो बस का खर्चा पड़ा हमें फ्रेट एंड ड्यूटी का, दिस इज़ 3500। 3500 आपने डेबिट साइड में डाल देना है। इसके बाद परचेज़ रिटर्न है, वो आपने परचेज़ में से लेस कर देनी है, लेस परचेज़ रिटर्न। तो राजे परचेज़ रिटर्न आपके पास है 2500 की। 2500 की लेस करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 43,000 का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो भी आपने डायरेक्ट ही मानने हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही लिखोगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 7500 के, 7500 के एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपने इधर ही लिखने हैं। इसके बाद सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को आप सेल्स रिटर्न में से माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न आपके पास आ रही है 8987। 8987 जब आप माइनस करोगे तो 68,778 का अमाउंट रह जाएगा।
इसके बाद राजा आपके पास पावर है, पावर भी डायरेक्ट खर्चा होता है, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही डालना है आपने। पावर का खर्चा जो है आपके पास 800 का है, वो आपने डाल देना है। पावर के बाद आपके पास एक्सपेंसेस आता है कोल एंड कोक का, कोल एंड कोक, तो ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, कोल एंड कोक का, वो भी आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालना है। फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं। 250 का है जी आपका, ठीक है जी, 250। इसके बाद ऑक्ट्रोई का खर्चा भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट का ही खर्चा है, ठीक है जी। तो ये एक प्रकार से आपका वेट टैक्स है, जितना भी सामान आपने लोड किया हुआ है, ठीक है जी। और एक आपका है क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी आपका जो है डायरेक्ट खर्चा है। रास्ते में आपको बिल वगैरह क्लियर होते हैं, तो क्लियर चार्जिंग जो है वो खर्चा भी आपका डायरेक्ट खर्चा है, दिस इज 350 का, ठीक है राजे। तो आपने डायरेक्ट खर्चे लिखे, ठीक है जी, और साथ में आप नोट कर रहे हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है जी। और आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया 35,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने इनकम साइड में लिखना है 35,000 का, ये ऑटोमेटिकली परचेज में से माइनस हो जाएगा। जब आप टोटल करोगे तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 1,03,650, तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो जो साइड ज़्यादा होएगी उसका टोटल आप दोनों साइडों में लिखोगे 1,03,650, और डेबिट साइड का टोटल जितना भी होएगा वो क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर देना है। तो आप देख रहे हो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है यहाँ पे 16,600 का, 16,600 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपको अब इलस्ट्रेशन 3 जो आपने की है, ठीक है जी, इस इलस्ट्रेशन 4 जो आप कर रहे हो, इलस्ट्रेशन 4 का आपको फिर दोबारा ये करके देखनी है राजे आपने, और इलस्ट्रेशन 4 की जो फॉलोअप है वो भी करके देखनी है, और इलस्ट्रेशन 5 जो है वो आपने सेल्फ करनी है, और इलस्ट्रेशन 5 की जो फॉलोअप है वो भी आपने करके देखनी है। अब राजा आप बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। Preparation of profit and loss account, preparation of profit and loss account। प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, इसके बाद फिर पर्टिकुलर, इसके बाद क्रेडिट अमाउंट। और यदि यहाँ पे आपको बात समझनी है वो क्या, कि जो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने इनकम साइड में शिफ्ट करना है। हम उसको शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर सकें और हमारा ये जो प्रॉफिट है वो सही कैलकुलेट हो सके। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर रहे हो
तो वो ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है राजे। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट करने हैं और क्रेडिट साइड में क्या नोट करनी है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है राजे, इनडायरेक्ट इनकम नोट करनी है। क्लियर। तो अब क्या है कि आपका आधा पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का होएगा और आधा पोर्शन किसका होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है राजे। अब राजे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी, तो इसके हाफ पोर्शन पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और नीचे वाले पोर्शन पे क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। तो पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होएगा, उसके बाद क्या बनाना होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी आप बात करेंगे, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप, और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इलस्ट्रेशन 6 डिस्कस करेंगे। 6 स्टेशन में क्या है कि हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। और आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो राजा ये आपने याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, तो डेबिट साइड हमारी एक्सपेंस की साइड होती है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद राजा इसमें आपको दी हुई है परचेज, आपको परचेज दी हुई है। क्वेश्चन में परचेज है 1,50,000 की। अगर इसकी कोई रिटर्न है तो आप ये बाहर नहीं लिखोगे, पर्टिकुलर के अंदर लिखोगे अमाउंट, और इसमें से जो परचेज रिटर्न है वो आपने माइनस कर देनी है। अगर आप रिटर्न माइनस करोगे तो रिटर्न है आपकी 10,000 की। 10,000 की रिटर्न माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता है वो आता है 1,40,000 का। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट एंड कार्टेज, जो फ्रेट एंड कार्टेज है वो है हमारे पास 2,000 का। फ्रेट एंड कार्टेज कितना है, 2,000 का, तो वो आपने नोट कर लेना है। इसके पास हमारे पास अगला डायरेक्ट खर्चा आता है वेजेस। वेजेस का जो खर्चा है वो मेरे पास है 20,000 का। तो राजा आपने याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में 3 आइटमें आएंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट खर्चे। ये तीनों आइटमें हमेशा इसी तरफ रहेंगी। ठीक है जी। और इस तरफ 2 आइटमें आएंगी। एक मेरे पास आ रही है सेल। सेल का अमाउंट आपको दिया हुआ है 2,90,000 का, 2,90,000, और इसमें से आप माइनस करोगे रिटर्न। इसमें से आपने रिटर्न माइनस कर देनी है 5,000 की। तो अगर आप 5,000 की रिटर्न माइनस करते हो तो आपके पास अमाउंट आता है 2,85,000 का। आपके पास अमाउंट आता है 2,85,000 का, और आपको इसमें से माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 40,000 रुपीज़। अभी आपको क्या करना है, टोटल करना है। इस साइड का टोटल करोगे तो वो आता है 3,25,000, और इस तरफ का भी अगर आप टोटल करोगे तो वो आता है 3,25,000। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा और आपकी इनकम साइड ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होएगा। डेबिट साइड के टोटल को आप क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर दो, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो राजे आने वाला है 1,43,000 का। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको राजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आप जो नीचे वाला पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होएगा, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को इधर शिफ्ट कर देना है 1,43,000। अब ये नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का माना जाएगा, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट का। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आपको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट करने हैं और क्रेडिट साइड में क्या नोट करनी है, इनडायरेक्ट इनकम। तो मेरे पास इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आने वाले हैं
मेरे पास पहला एक्सपेंसेस आ रहा है सैलरीज़ का, मेरे पास सैलरीज़ का एक्सपेंसेस आ रहा है, सैलरीज आ रही है 20,000 की। ठीक है राधे, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? ध्यान से देखिए, आपको सैलरी दिखाई दे रही है 20,000 की। अब सैलरीज के बाद मेरे पास अगला एक्सपेंसेस है रेंट एंड टैक्सेस का। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस जो है वो है मेरे पास 5,000 का। रेंट एंड टैक्सेस के बाद मेरे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो है मेरे पास दैट इज़ 1,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। लीगल एक्सपेंसेस 2,000 के हैं। जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? 2,000 के हैं लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के बाद एडवर्टाइजमेंट है, इसके बाद मेरे पास है एडवर्टाइजमेंट है, और मेरे पास है बैड डेट्स। एडवर्टाइजमेंट और बैड डेट्स। एडवर्टाइजमेंट 10,000 की है और बैड डेट है 3,000 की। ठीक है जी। इसके बाद डिस्काउंट और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद है मेरे पास डिस्काउंट और ट्रेडिंग एक्सपेंस। ये डिस्काउंट अलाउड है, आपने किसी से पैसे लेने, आपने कुछ पैसे उसे छोड़ दिए तो ये डिस्काउंट अलाउड है 2,000 की, और 5,000 के हैं आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस। इसके नाम के आगे ट्रेडिंग लगा है, कहीं आप इसे ट्रेडिंग होने मत डाल देना। और इस तरफ इनडायरेक्ट इनकम आ रही है मेरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो शेयरों में भी हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000 का। तो ये इनकम इंडायरेक्ट इनकम है, आप गुड्स बेच के नहीं कमा रहे, किसी और सोर्स से आपको इनकम आ रही है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिल रहा है 2,000 का। कितने का मिल रहा है? 2,000 का मिल रहा है। अब राजा आप इसका टोटल करेंगे तो आप देख रहे हो कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,48,000। इधर भी कितना आ रहा है? 1,48,000। अब डेबिट साइड के टोटल को आप क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो आप देखोगे कि आपको 1,00,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट आप इसके नीचे लिखोगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको इसका जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र कर देना है? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करोगे आप, तो नेट प्रॉफिट ऐड करने से आपके कैपिटल का बैलेंस क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। राइट। तो इलस्ट्रेशन 6, अब बात है होमवर्क की कि इलस्ट्रेशन 6 आपको फिर दोबारा ट्राई करनी है। इलस्ट्रेशन 7 आप ट्राई करोगे, इलस्ट्रेशन 7, इसके बाद इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11। तो 6 से लेके 11 तक इलस्ट्रेशंस आप सेल्फ ट्राई करोगे, और साथ में आपने सबकी क्या करनी है? फॉलो अप। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। थैंक यू।